Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we had done planning process, and in this class we will be starting a new topic, that is importance of planning, that why planning is important. Now before starting this topic, we will be just revising the planning process. Students, that topic is very important. I had told you in our last class also that planning process is very important. Case studies can also come and direct questions can also come. Right? Now what is planning process? There are certain steps involved. That means there are actually 7 steps involved. और वो कौन से हैं? First is that we set up an objective. And how should be our objective? It should be specific, एकदम ही particular, specific होना चाहिए. It should be time bound, time specific होना चाहिए. And third is it should not be impossible to achieve. ऐसा objective बनाना है which is achievable. Second step is developing planning premises. Developing planning premises is forecasting the future events that might affect your business. हम क्या करते हैं? अभी से फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं एंड अपने बिजनेस को प्रिपेयर करते हैं so that the business can face those uncertain situations that may come across in future. The third step is identifying the various alternatives. Various options are identified. Then those options are analyzed. They are examined, analyzed, and then from among all the options available, the best one is chosen. Choosing the best alternative. After that, whatever plan we have made, it is implemented. It is implemented meaning it is put into action. Right? वो follow करना हम start कर देते हैं. And last is follow up. Follow up में क्या होता है? हम ये check करते हैं whether everything is going as per our plan or not. Whether that plan is feasible or not. Is there any requirement to change that plan or to modify that plan? And if there is requirement, तो क्या करा जाता है? या तो प्लान को मॉडिफाई किया जाता है या फिर entirely चेंज किया जाता है. And this is the planning process. And students, I repeat again, you have to learn it in sequence. आप ऊपर नीचे steps नहीं कर सकते हैं. Okay. Now today's topic is importance of planning. Why planning is important. Right. The first importance is that planning gives direction. Planning gives direction. Now, this one is, I think, pretty easy. If you remember the definition of planning, planning क्या बोलता है? Planning is thinking in advance. What is to be done? करना क्या है? How it is to be done? करना कैसे है? When it is to be done? करना कब है? And by whom it is to be done? करेगा कौन? जब हम इतना सोच समझ के सब काम कर रहे हैं, पहले से थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोच रहे हैं, तो प्लानिंग हमें एक्चुअली क्या दे रहा है? प्लानिंग इज गिविंग अस डायरेक्शन. प्लानिंग इज शोइंग अस द डायरेक्शन इन विच वी हैव टू मूव इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल. प्लानिंग हमें बता रहा है कि सी दिस इज द वे यू हैव टू मूव इन ऑर्डर टू अचीव द गोल. बिकॉज वी आर एक्चुअली थिंकिंग इन एडवांस. सब कुछ सोच समझ के पहले से फिर हम आगे स्टेप ले रहे हैं. सो प्लानिंग गिव्स अस द डायरेक्शन एंड विच हेल्प्स अस इन अचीवमेंट ऑफ गोल. स्टूडेंट्स, कमिंग टू द सेकेंड वन. द सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज दैट प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. Planning reduces the risk of uncertainties. Now students, whenever we plan, we all know that we have to predict our future. हमें future में झांक के देखना पड़ता है. We have to take a peep into the future and accordingly we have to make a plan. हमें forecasting करनी पड़ती है. हमें forecasting करनी पड़ती है. But can we be 100% accurate in forecasting the future? No, we cannot be. हम कभी भी 100% accurately future forecast नहीं कर सकते हैं. But अगर हम सोच समझ के बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, तो क्या होगा? To certain extent
we can reduce the risk of uncertainties. फ्यूचर में जो अनसर्टेन इवेंट्स होने वाले हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, उसे हम टू सर्टेन एक्सटेंट वी कैन रिड्यूस इट बाय मेकिंग अ प्रॉपर प्लान, बाय taking a peep into the future. What do you mean by taking a peep into the future? फ्यूचर में झांक के देखना. अगर हम फ्यूचर में अभी से झांक के देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी मेक अ प्लान, सो टू सर्टेन एक्सटेंट क्या हो जाएगा, हम वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. 100% वी कैन नॉट रिमूव इट, राइट, बट टू सर्टेन एक्सटेंट. नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल, we'll take that same example of Goa trip. Suppose I didn't plan anything. मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी. I just picked my bag and went to Goa. अब मैं वहाँ गोवा पहुँच तो गई, but what happened? That I could not find a hotel for myself. होटल चाहिए होगा रहने के लिए. I could not find it. जो hotels available थे, which I find it suitable for me, they were all booked. सब booked थे. So I had to compromise with some B grade or C grade hotel. एक ऐसे होटल में रहना पड़ा जो मेरी चॉइस का नहीं था. क्यों? Because I haven't done proper planning. मैंने proper planning करके नहीं गई. I haven't decided where I have to stay. I haven't searched about various hotels जो कि वहाँ available होंगे on internet. मैंने कुछ प्लान नहीं बना के गई, तो क्या हुआ? I could not find a suitable hotel for me. Right? तो मैं वो जो uncertainty है उसे reduce नहीं कर पाई. But yes, if I would have properly planned, properly internet पे search करके जाती कि this is where I have to stay. These are the hotels where I can book a room for myself. तो क्या होता? Then to certain extent वो uncertainty reduce हो जाती. मुझे आराम से वो होटल मिल जाता. Right? So this is what I am trying to say, that planning helps you to reduce the risk of uncertainty. Students mind it that planning doesn't entirely remove the risk of uncertainty. अब हो सकता है जो मैंने सोचा था कि ये होटल में बुक कराऊंगी जाके, हो सकता है कि वहां जाके वो फुली बुक हो जाता, राइट, या वहां जाके वो होटल इतना अच्छा नहीं निकलता, राइट. तो हम फुली अनसर्टेनिटी को रिमूव नहीं कर सकते, बट टू सर्टेन एक्सटेंट, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट वी नीड टू मेक अ प्लान बिफोर डूइंग एनीथिंग. उससे क्या होगा? आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपके गोल को अचीव करने में. Okay, now coming to the third one. Third is that planning reduces overlapping and wasteful activity. Planning क्या करता है? आपके overlapping. What do you mean by overlapping? Overlapping is actually duplicate. You can say duplicate. And wasteful activities. Now overlapping activity is that suppose कोई काम है, there is a work which one person can easily do it. एक काम है जो कि एक पर्सन आराम से कर सकता है, बट ओवरलैपिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वही काम क्या हो रहा है, 2 जन कर रहे हैं, 3 जन कर रहे हैं, जबकि वही सेम काम इट कैन बी डन बाय अ सिंगल पर्सन. सो दैट इज ओवरलैपिंग एक्टिविटीज. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टफुल एक्टिविटीज? वेस्टफुल एक्टिविटी is unnecessary activity, the activity which should not be done, but still we are doing it. So that is unnecessary activity. Hope you must have understood these two words, overlapping activities and wasteful activities. Now this point is saying that if you do proper planning beforehand, पहले से plan कर लेते हो, so you are able to reduce these overlapping activities. तो पहले से प्लान कर लेते हो कि दिस वर्क विल बी डन बाय दिस पर्सन, दिस वर्क विल बी डन बाय दिस पर्सन. आप पहले से ही प्लान बना रहे हो, तो क्या होगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो काम एक पर्सन कर सकता है उसमें 3-4 जन लगे हुए हैं. क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही सोच लिया कि वो काम करेगा कौन. हमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है. द सेम वे वी कैन रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटीज ऑल्सो.
वी कैन रिड्यूस द अननेसेसरी एक्टिविटीज ऑल्सो. जो काम नहीं करना है वो नहीं करेंगे अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे. अगर हम पहले से ही सोच लें कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, एंड दीज वर्क दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ये करना ही है, तो हम वही करेंगे. पर अगर हम बिना सोचे बस करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज होंगी जो करना जरूरी है और ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज होंगी जो अननेसेसरी, जो करना ही नहीं चाहिए था. राइट. सो दैट मीन्स इफ यू डू प्रॉपर प्लानिंग देयर विल बी नो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज. सब अपना अपना काम करेंगे. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो कि वेस्टफुल है, अननेसेसरी है. ओके. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन. Planning promotes innovative ideas. What do you mean by innovative? Innovative is new ideas or you can say creative ideas. Planning से क्या होता है, new ideas generate होते हैं या फिर creative ideas generate होते हैं. अब how? Now students, if you remember when we were doing the features of planning, एक feature किया था that planning is a mental exercise. Mental exercise means it is related to mind. Planning is related to mind. It is not a physical exercise where you have to run or jog. कुछ ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है, you have to use your brains. You have to do lot of brainstorming. सोचना है, समझना है, right? And अगर इतने brains use करोगे तो क्या होगा, you will automatically generate innovative ideas. And planning हमेशा innovative होनी चाहिए. Innovative means कुछ नया होना चाहिए. Why? Because environment keeps on changing. ये हम बहुत बार कर चुके हैं. That environment is dynamic in nature. We cannot stick to one plan. Environment जैसे जैसे change होता है, we need to change our planning. Right? तो मतलब हमें innovative ideas बहुत चाहिए planning के टाइम पे. और वो कैसे होता है? Because it's a mental exercise. बहुत सोचते हैं, समझते हैं. जब brains use करोगे तो क्या होगा? Obviously you will generate innovative ideas, and it is important in planning to generate innovative ideas. Okay, now students, coming to the fifth one. Planning helps in decision making. Planning हमें decisions लेने में help करती है. Now if you remember that planning process, अभी जो हमने planning process वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अगर वो याद हो तो देखा जाए तो हम सारे डिसीजन ही तो ले रहे हैं. सबसे पहले क्या डिसीजन लिया, टू सेट अप एन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव बनाना भी तो एक डिसीजन लेना है कि ओके दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव, राइट. उसके बाद क्या किया, वी हैव डन फोरकास्टिंग. हमने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया एंड अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लिए. तो वो भी क्या हुआ, डिसीजंस लेना. आफ्टर दैट वी हैव आइडेंटिफाइड वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कि अच्छा ये वेंडर्स हैं, ये सप्लायर्स हैं, या ये ऑप्शंस हैं, तो ये भी एक तरह से डिसीजंस लेना ही हुआ. ओके. एंड देन वी हैव एनालाइज्ड इट ऑन वेरियस पॉइंट्स. एनालिसिस किया, देन वी हैव चोजन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. चूजिंग दैट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज ऑल्सो टेकिंग अ डिसीजन, नो. तो हम प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई वी से दैट प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. So you can relate this point to the planning process. अगर planning process याद हो तो ये point आपको आराम से easily you can understand it. Right? Now coming to the sixth one. Planning establishes standard for controlling. Now this point you need to understand. ये थोड़ा सा tricky है. Planning establishes standard for controlling. Now for explaining you this point, I will give you an example. Now suppose it's your 12th, not suppose, actually it's your 12th class only. Now this is your 12th class, आप पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, you are getting up early to study, you are making your own notes, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है. You are studying for 8 hours, 10 hours, बहुत मेहनत कर रहे हो, and आपका बोर्ड एग्जाम आ गया, आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया, एंड एट द एंड द रिजल्ट ऑल्सो केम. ओके. नाउ व्हेन योर रिजल्ट केम, सपोज यू स्कोर्ड 82%.
ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया एंड आपके कितने परसेंटेज आए? यू स्कोर 82%. Now if I ask you, or if I ask anybody, if I ask your parents or if I ask your friends कि क्या ये मार्क्स आपके अच्छे हैं, क्या मैं आपसे भी पूछूं कि क्या ये आपके मार्क्स अच्छे आए हैं? So there will be different answers. सबके आंसर्स अलग होंगे. Some will say no, it's good, 80% above आए हैं, 82% है, it's good. कुछ बोलेंगे no, it is not good, 90% आना तो बहुत कॉमन है आजकल, राइट? तो क्या है, सबके डिफरेंट आंसर्स हैं. That means we cannot say that this is good or bad. These marks are good or bad, हम ये नहीं बोल सकते. Why? क्योंकि हम कुछ कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं. एंड अगर कोई कुछ कंपैरिजन के लिए होता तो हाँ हम बता सकते कि yes, this is good or bad. Okay. Now अभी तो हम नहीं बता पा रहे that this is good or bad. Okay. But suppose when your class 12 started, जब आपकी क्लास 12 स्टार्ट हुई, आपने एक अंदर से प्लान बना लिया या प्लानिंग कर ली, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया. आपने क्या ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट किया दैट दिस इज माय 12th क्लास, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, राइट? सो इस क्लास में इस ईयर में बहुत मेहनत करूंगा एंड मेरा टारगेट ये है दैट आई विल बी स्कोरिंग 90+. ठीक है, आपने ईयर की स्टार्टिंग में ही ये ऑब्जेक्टिव बना लिया था कि दिस ईयर मुझे बहुत मेहनत करनी है एंड माय टारगेट इज दैट आई विल बी स्कोरिंग मोर देन 90%. एटलीस्ट 90% तो मेरे आने ही चाहिए. ओके, ये आपने पहले ही सोच लिया. अब आप मेहनत कर रहे हो, यू आर गेटिंग अप अर्ली, मेकिंग योर नोट्स, सब मेहनत कर रहे हो. एंड देन एग्जाम ऑल्सो केम, रिजल्ट भी आ गया. ठीक है, एंड रिजल्ट में क्या आया? 82%. Now if I ask you that whether you have done good or bad, तो क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे that no, I am not satisfied with my marks, I am not satisfied with my performance. Why? Because now you are able to compare it. आपने ये जो ऑब्जेक्टिव बनाया था, जब आपने प्लानिंग करी होगी कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, ऑब्जेक्टिव बनाया था, गोल बनाया था, कितना बनाया था? 90%. एंड एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा? 82%. नाउ यू कैन कंपेयर इट, राइट? अब आप बोल सकते हो नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. द सेम वे इफ यू आस्क मी, आई विल आल्सो से द सेम कि अगर 90% ऑब्जेक्टिव था, गोल तो और 82 आए तो ऑब्वियसली इट्स लेस. और अगर आप किसी से भी पूछोगे वो भी यही बताएंगे. बट जब ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाया था, जब आपने कोई प्लानिंग करी नहीं थी, तो ये 82% से क्या हम बता पा रहे थे दैट अच्छे मार्क्स आए या बुरे मार्क्स आए हैं? नहीं. कुछ के लिए तो 82 was good, कुछ के लिए 82 was bad, right? But because we have made the standard, we can also call it as target, we can also call it as objective, we can also call it as goal. क्योंकि हमने पहले से ही स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं. स्टैंडर्ड्स को आप टारगेट भी बोलते हो, और आप ऑब्जेक्टिव भी बोलते हो, और आप गोल भी बोल सकते हो. आप ये चारों वर्ड्स यूज कर सकते हो. द मीनिंग इज सेम. क्योंकि आपने पहले से ही स्टैंडर्ड्स बना लिए थे कि नहीं मुझे 90% तो लाने ही है, पर एक्चुअली कितने आए? 82%. कंपेयर किया तब हमें पता चला कि नो, अभी मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए. सो दिस इज व्हाट प्लानिंग हेल्प्स यू. प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. नाउ इफ यू रिमेंबर, कंट्रोलिंग क्या होता है? चेकिंग. चेक करते हैं दैट एवरीथिंग इज गोइंग एज पर आवर प्लान और नॉट. सब चीज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है, राइट? तो ये कैसे पता चलता है? अगर आपने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बनाया होगा तभी तो कंपेयर करके बता पाओगे कि सब चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है.
और अगर ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं बना होता, ये ऑब्जेक्टिव कब बनाते हो? प्लानिंग के टाइम पे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव बनाया ही नहीं होता तो क्या हमें पता चलता कि ये अच्छा है या बुरा? नहीं पता चलता, राइट स्टूडेंट्स? सो प्लानिंग क्या करता है? इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके, नाउ वी विल जस्ट रिवाइज इन शॉर्ट. Planning gives you direction. It gives you direction, it tells you in which direction you have to move in order to achieve your goal. The second is that it reduces the risk of uncertainty. अगर आप पहले से प्लान बना लेते हो तो जो फ्यूचर में अनसर्टन सिचुएशंस आने वाली हैं उसके लिए आप प्री प्रिपेयर्ड हो जाते हो, राइट? The third is it reduces the overlapping and wasteful activities because you're making the plan beforehand. So all the wasteful activities are avoided. And third is planning reduces overlapping and wasteful activities. If you are planning beforehand, सब पहले से सोच समझ के कर रहे हो तो कोई भी activities overlapping नहीं होगी और unnecessary नहीं होगी. Next is that it helps in decision making. I had told you that planning में बहुत सारे decisions लेने पड़ते हैं, right? Next is that it promotes innovative ideas because in planning we have to use our brains. बहुत सोचना समझना पड़ता है, right? तो क्या होता है? Obviously, if you're using your brains, then automatically new ideas will generate. The last is that it establishes standard for controlling because in planning we set up an objective, so we are able to compare our actual results with it. अगर डेविएशन है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक यू.